Hello everyone. So in this video we are going to start discussing about the microprocessor 8085. 12th standard students, this is a very important chapter because the microprocessor 8085 has the largest weightage in your CS2. So in this video we are going to discuss some basic points of microprocessor 8085 and also we are going to discuss a very important topic, a most commonly asked question in your board exam, that is addressing modes of 8085. So let's start discussing this video more in detail. If you want to learn the assembly language program, then some basics of 8085 and the addressing modes should be clear. So this is the first video of CS2 on microprocessor 8085. I hope so this video will give you a lot of information and this will actually help to clear all your basics. When you start exactly your ALP, you will feel ALP very easy to understand. Okay, so let's start discussing this video more in detail. So you can see here, this is nothing but your microprocessor 8085. Microprocessor 8085, I know this microprocessor 8085 is not commonly used nowadays in like the computers, in your laptops and all, right? But this was one of the basic microprocessor for all the other microprocessors. Whatever latest microprocessor we use in our day-to-day life, so out of that microprocessor, like this is the basic architecture. So because of this 8085 and because of the architecture of 8085, today we are having a lot of microprocessor, that is like Intel Core i5, Intel dual core. So we have multiple latest advanced microprocessor, but who was the basic foundation of all the microprocessors? That is 8085. So if any student want to learn the microprocessor, that student has to start from 8085. After understanding 8085, then we can go to the advanced microprocessors, right? So this is typically like 8085 and you can see like 8085 microprocessor here. So this is just a kit of microprocessor 8085, but this is exactly the microprocessor 8085. Microprocessor 8085 was earlier used in just calculators and to perform some basic functions, right? So microprocessor is not a high-end microprocessor which can do multitasking, multi-programming and so, but this was a basic microprocessor which is the foundation for all other microprocessor. So microprocessor 8085 exactly looks like this, which was like 8085 was given by Intel, which has 40 pins. Basically इस माइक्रोप्रोसेसर को 40 पिंस होता है और पिन डायग्राम, इसका आर्किटेक्चर, ये सब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने ही वाले, राइट? एंड ये होता है अपना माइक्रोप्रोसेसर 8085 का किट. सो दीज आर सम बटन्स. यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे, कमांड देंगे. अभी इंस्ट्रक्शंस कौन से लैंग्वेज में देंगे? ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आएगा किसको? नहीं, अपने माइक्रोप्रोसेसर को समझ में आता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. तो पहले हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को सीखना पड़ेगा टू यूज द माइक्रोप्रोसेसर 8085. ओके, चलो, सो लेट स्टार्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स एंड द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085. सो Chapter 2 for the 12th standard students is very important because this chapter is going to give you the highest weightage in your CS2. So थोड़ा marks distribution देख लेते, like with option ये chapter आपको आपके boards में आएगा 94 marks के लिए and आपको like पूरा 94 marks का आप attempt नहीं कर सकते हो, कुछ questions और में होता है, राइट? सो हमें एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना होता है 43 मार्क्स का. 43 मार्क्स में भी अगर आप आंसर द फॉलोइंग देखोगे तो बेसिकली आपको सिर्फ 23 मार्क्स का अटेम्प्ट करने मिलेगा. सो दिस चैप्टर कैन एग्जैक्टली गिव यू 23 मार्क्स, नॉट 43 मार्क्स. 43 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बट आप अटेम्प्ट कर सकते हो ओनली 23 मार्क्स का. कैसे? एक MCQ 1 मार्क कंपल्सरी, नो ऑप्शन. देन यू हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स. So 4 questions of 3 marks. 4 3s are 12 marks. So 12 marks आपको 3 marks के आंसर से मिल जाएगा. 4 marks के कुछ questions यहाँ पे ये चैप्टर में से पूछेंगे नहीं. So सिर्फ theory में कितना हुआ? 13 marks. Theory में 13 marks. And if you come to question number 5 of CS2 paper, so question number 5 we have to write the ELP program. Right, we have to write the ELP program. So basically there are 3 options. Out of 3 we have to attempt any 2. Each ALP code stands for 5 marks. So 5 2s are 10. So question number 5A 10 marks, question number 5B 10 marks. Okay, basically you can attempt question number 5A or you can attempt question number 5B. दोनों में से कोई एक आप attempt कर सकते हो, ठीक है? बट कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? ओवरऑल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे प्रोग्रामिंग से? 10 मार्क्स. सो थियरी में आपको 13 मार्क्स मिल गए, कोडिंग में आपको 10 मार्क्स मिल गए. सो 23 मार्क्स आपको ये चैप्टर दे देगा. ओके, सो ये अगर आपको अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपको
10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर करना है तो योर ALP कंसेप्ट शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ALP कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो ये सब पॉसिबल है स्कोरिंग करना, ठीक है। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, नोटबुक पेन सब कुछ आपके साथ रखना है एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सो व्हाट इज बेसिक्स? Whenever we start the ALP तो हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बाइनरी नंबर्स, आई होप सो ये सबको पता है, बट स्टिल बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर योर 11th स्टैंडर्ड CS1 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में आपने सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाट इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, हाउ टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम टू द अनदर नंबर सिस्टम, एवरीथिंग यू पीपल हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बट स्टिल थोड़ा बेसिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी नंबर्स, द नंबर्स दोज आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, ठीक है। बाइनरी नंबर्स आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर्स और द कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड अदर नंबर सिस्टम। The computers can understand only 0 and 1 and the combination of zeros and ones. Only the computer can understand those, that is 0 and 1. Such number system is called as your binary number system. Base 2. What is base? Base मतलब इस नंबर सिस्टम के अंदर कितने वैल्यूज होते हैं? दो, एक तो 0 या तो 1. If you see the symbol or a digit, either 0 or 1, right? Example we can take. ओके, सो एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड बेस 2 होने के कारण वी राइट इन लाइक बेस 2, ऐसे हम बेस 2 लिखते हैं। ये सब आपका 11th में नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। सो इफ यू सी द बाइनरी नंबर्स, लाइक व्हेन वी कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी, नाउ हाउ टू कन्वर्ट दैट डेसिमल टू बाइनरी? सिंपली यू हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. So when you divide the decimal number by 2, you have to check for the remainder. एक तो रिमाइंडर आपको 0 आएगा या तो 1 आएगा, बस उसका सीक्वेंस बनाते जाओ और आपको मिल गया आपको बाइनरी। ये सब हमने 11th में ऑलरेडी कर दिया है, सो आपको पता ही रहेगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने का। कैसे कन्वर्ट करने का? 2 से डिवाइड करने का। यू हैव टू चेक फॉर द रिमाइंडर। रिमाइंडर को साइड पे अलग से लिख के रखो। यू हैव टू गो फ्रॉम द LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हैं और हमें ये कन्वर्जन मिल जाता है, राइट। सो ये सब आपको पहले से ही पता है, नंबर सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया ही है, ठीक है। सो 0 बाइनरी में भी 0 होता है, 1 बाइनरी में भी 1 होता है, बट 2 डेसिमल में 2 होता है, अपने लिए 2 होता है, बट कंप्यूटर 2 को कैसे देखेगा? 1 0 ऐसे देखेगा। 1 0 मतलब अपने लिए 10 है, बट कंप्यूटर के लिए क्या है? 2, because that is the binary number system and the computer understands the binary number system, right? 3 अपने लिए 3 है, बट कंप्यूटर के लिए 3 कैसे रहेगा? 1 1। अभी कैसे, क्या डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो, चेक फॉर द रिमाइंडर, गो फ्रॉम द LSB टू MSB, यू विल गेट 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1 and so on. Okay, so already you know all this basic concepts, right? but पता होना चाहिए binary number system is used by the computers because computers can understand either 0 or 1. After this we must know hexadecimal number system. जैसे कंप्यूटर्स को समझ में आते हैं 0 और 1, वैसे अपने माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आता है हेक्साडेसिमल नंबर। अपने माइक्रो प्रोसेसर को 0 1 से कोई लेन देन नहीं, अपना माइक्रो प्रोसेसर को डेसिमल नंबर सिस्टम से कोई लेन देन नहीं, अपने माइक्रो प्रोसेसर को ऑक्टल नंबर सिस्टम से कोई लेन देन नहीं। अपना माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ लेन देन किससे रहेगा? hexadecimal number system. And what is hexadecimal number system? Hexadecimal number system is a number system which has a base of 16, right? So the number those are used in microprocessor are called as hexadecimal number system. Okay, again I repeat, the numbers which are used in microprocessor. So if you want to study the language of microprocessor 8085 तो आपको hexadecimal number system आना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपके माइक्रो प्रोसेसर को डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में आएगा ओनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इफ यू सी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इट हैज अ बेस ऑफ 16। अब इसके अंदर सिंबल या डिजिट्स क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता नहीं है। 10 को हम क्या बोलते हैं? A, 11 को हम बोलते हैं B, 12 को बोलते हैं C, 13 D, 14 E एंड 15 F। सो जब हम 0 से काउंट करते हैं तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 16, राइट? 0 को इंक्लूड करके हो जाएगा 16। सो दिस काइंड ऑफ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर, 10 को क्या बोला जाएगा? 10 को बोला जाएगा A, 11 को बोला जाएगा B, 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 F, राइट? सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लिखते हैं ऐसे 10 16 45 16, राइट? सो ये हम लिखते हैं, बट व्हेन वी यूज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वी हैव टू राइट लाइक दिस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस 10H। H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल,
45H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, राइट। सो हम नंबर सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, बट ALP प्रोग्राम में, in the ALP program we are going to write in this manner, right? So this is the memory address C000H, right? A16 means AH, so you have to write like this in the assembly language program. Okay, so ये भी आपको पता होना चाहिए. Okay, now next hexadecimal number system का binary में conversion आपको पता होना चाहिए, right? In ALP this is very important. In every instruction this concept is there. In every instruction, literally whatever instruction you are going, total 53 or 54 instructions are there in ALP. हम जब ये 53 54 instructions पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे क्या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। हाउ टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखने का, इसको याद रखने का 1 2 4 8। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब भी आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना रहेगा बाइनरी में, इसको याद रखने का 1 2 4 8, राइट। चलो, सो एक एग्जांपल लेते हैं। सो इफ आई टेक 1, सो अभी हेक्साडेसिमल में तो अपन उसको बोलते हैं 1, बट इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी आपको यहाँ पे 1 कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट। सो उसके नीचे बस 1 लिख दो और बाकी सारे प्लेसेस पे 0 लिख दो। 0 0 0। सो 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम बोलेंगे 0 0 0 1, ठीक है। एंड क्या है ना, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अभी 4 बिट ही क्यों? बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट। सो बिकॉज अपना जो मेमोरी लोकेशन होता है ना, सो ये मेमोरी लोकेशंस का कैपेसिटी जो होता है ना 4 बिट का होता है। 4 बिट। सो ALP में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। इन ALP लाइक ऑल द कन्वर्टेड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में जो कन्वर्ट करते हैं ना, वो 4 बिट का होना चाहिए। ये रूल है, याद रखना। ALP का रूल है 4 बिट का होना चाहिए इसके लिए। सो दिस इज 1 बिट, दिस इज 2nd बिट, दिस इज 3rd बिट, दिस इज 4th बिट, ठीक है। सो 1 को हम कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1। ओके, ये 4 बिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक कन्वर्जन करते हैं हम लोग, सो लेट्स टेक अनदर नंबर, लेट्स टेक 5, ठीक है। हम अभी काम करते हैं 1 नहीं लेते, हम अभी 5 को लेते हैं। 5, सो 5 को हम लोग 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 5 को हम लोग 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे? सो 5 मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ कैन यू सी 5 हियर? नो, यू कांट सी 5, बट 2 नंबर्स ऐड करके आप 5 को ला सकते हो, जैसे कि 4 + 1, 4 + 1 यू गेट 5, ठीक है। 4 + 1 यू गेट 5। बाकी प्लेसेस पे ऐड कर दो 0, सो 5 को हम बाइनरी 4 बिट्स में कैसे लिखेंगे? 0 1 0 1। यू कैन सी हियर 5 0 1 0 1। इज दैट क्लियर? चलो और एक लास्ट एग्जांपल लेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी बाइनरी में नंबर लिखते हैं तो वो होना चाहिए 4 बिट का। लेट्स टेक अ नंबर कॉल्ड एज 9 लेते हैं अभी 9। सो 9 यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, राइट। 9 आपको दिखेगा नहीं। सो 9 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 + 1, ठीक है। 8 + 1 एंड बाकी प्लेसेस यू हैव टू ऐड 0। इन अदर प्लेसेस यू हैव टू ऐड द 0। सो हाउ डू वी राइट 9 इन बाइनरी 4 बिट? सो दैट इज 1 0 0 1, ठीक है। सो 9 1 0 0 1, ठीक है। अभी 10 होता है क्या? 10, चलो एक काम करते हैं, 11 एग्जिस्ट करता है क्या? 11 को हम क्या बोलते हैं? 11 को हम क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, ठीक है। 11 एग्जैक्टली हमें समझ में आता है, बट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 11 इज कॉल्ड एज B, 12 इज कॉल्ड एज C, 13 इज कॉल्ड एज D, 14 इज कॉल्ड एज E, 15 इज कॉल्ड एज F, 16 को हम बोलते हैं 1 0, ठीक है। इसके आगे आपको बाद में जाना है, बट अभी आपको सिर्फ 15 तक याद रखना है, ठीक है। हाँ चलो, सो लेट्स टेक 11 को हम बोलते हैं B। सो हाउ टू राइट B इन 4 बिट बाइनरी? B को हम लोग 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे? B मतलब क्या होता है? 11। सो 11 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किस को ऐड करना पड़ेगा? डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी लार्जर नंबर को कभी 1 2 ऐसे में स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। 11 लाने के लिए सबसे पहले 8 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। 8, देन हमें और क्या करना पड़ेगा 11 लाने के लिए? ठीक है, 8 9 10 11, राइट। 8 + 2 + 1, अगर आप 4 को ऐड करोगे, ठीक है, 8 फिर 9 10 11 12, 8 + 4 वो 12 हो जाएगा। हमें 12 नहीं चाहिए, हमें 11 चाहिए, राइट। सो वी कैन नॉट ऐड द 4, ठीक है। सो बचा क्या? 2 1। सो 8 + 2 10, 10 + 1 11, यहाँ पे ऐड कर दो 0। सो हम B को कैसे लिखेंगे? 4 बिट बाइनरी में B को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1। इज दैट क्लियर? 1 0 1 1, ठीक है। चलो, हाउ टू राइट E
ई का मतलब क्या होता है? ई मतलब 14, ई मतलब क्या? 14। अभी 14 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई मतलब 14 को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो ऐड करो, 8 + 4, 8 + 4 12, 12 + 2 14, राइट? 12 + 2 14, बचा क्या? 1, वहाँ पे ऐड कर दो 0, बचा क्या? 1, वहाँ पे ऐड कर दो 0। सो 14 का 4 बिट बाइनरी क्या रहेगा? 1 1 1 0, ठीक है? सो ये आपको पता होना चाहिए, लाइक दिस इज द बेसिक थिंग एंड दिस यू मस्ट नो, ठीक है? सो यू हैव टू नोट इट डाउन, नोट करके आप भी एक बार गो थ्रू करो। रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी हेक्स नंबर ले लो, कोई भी हेक्स नंबर ले लो और उस हेक्स नंबर को कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी, ठीक है? व्हेन वी गो आफ्टर 15 के बाद जाने के बाद देन वी डोंट हैव द 4 बिट, राइट? 4 बिट नहीं रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा 8 बिट। सो 8 बिट के लिए यहाँ पे टोटल 8 बिट्स आने। बिट मतलब क्या होता है? 0 और 1। व्हाट इज 1 बिट? 1 बिट का मतलब होता है 0 और 1। सो 4 बिट का मतलब होता है 0 1 के 4 कॉम्बिनेशंस। 8 बिट का मतलब होता है 0 1 के 8 कॉम्बिनेशन। सो 15 के बाद आप जब जाओगे तो आपको कितने बिट मिलेगा? 8 बिट का सीक्वेंस मिलेगा, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड विद द बेसिक्स। After completing the basics, then we can start the addressing modes of 8085. This is a compulsory question, a very important question, and this question is literally asked in the board exam every time. 3 marks का question होता है. What is addressing mode? Explain direct addressing mode and register indirect addressing mode in detail. Total there are 4 to 5 addressing modes. इन 4-5 एड्रेसिंग मोड्स में से कोई भी 2 एड्रेसिंग मोड आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, बट दिस क्वेश्चन कंपल्सरी कम्स इन योर पेपर फॉर 3 मार्क्स। ओके, सो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है? देखो, हमें माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, राइट? हमें माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए मतलब इनपुट या आउटपुट, इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए आपको कुछ एड्रेसिंग मोड का यूज करना पड़ेगा। कीप इट सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। लाइक कोई भी मशीन को यूज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू गिव द इनपुट। व्हेन वी गिव द इनपुट टू द मशीन, देन द मशीन इज गोइंग टू गिव द अप्रोप्रिएट आउटपुट। सो इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए बीच में होते कुछ एड्रेसिंग मोड्स, और उस एड्रेसिंग मोड्स को यूज करके हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मशीन के साथ। ओके, तो वही होता है अपना एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085। सी, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। अपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा, वी हैव टू गिव द करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस टू द माइक्रो प्रोसेसर। जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, जब तक आप आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि करना क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू यूज द माइक्रो प्रोसेसर, यू हैव टू गिव द प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन ईच इंस्ट्रक्शन a programmer has to specify 3 things. हम अभी ALP पढ़ रहे हैं, we are learning the assembly language program, right? In assembly language program there are many instructions, right? So in assembly language program, whenever we give the instruction, that time the programmer has to specify 3 things. For example, I am doing the coding of ALP, so I am the programmer. So when I am going to give the instruction to my 8085 kit, I have to remember 3 things. What are the 3 things? See, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। सबसे पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे एडिशन करना है कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट करना है कि मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, कि मुझे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बताना पड़ेगा, राइट? 3 चीजें बोलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मुझे माइक्रो प्रोसेसर को बोलना पड़ेगा। फिर सेकेंड मुझे क्या बोलना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, मुझे एडिशन करना है, बट एग्जैक्टली कौन से नंबर के साथ एडिशन करना है? ठीक है, मैंने माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले क्या बोला? मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एडिशन। बट एडिशन करने के लिए डेटा किधर है, उसके ऑपरेंड्स क्या है वो भी बताना पड़ेगा, तो उसको अपन बोलते हैं सोर्स ऑफ डेटा। सो व्हेन आई एम गोइंग टू गिव द एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, माय माइक्रो प्रोसेसर विल टेक द डेटा फ्रॉम दैट एड्रेस सोर्स एंड देन इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन। थर्ड थिंग, हमें ये भी बोलना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को, एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को मैंने बोल दिया बाबा तेरे को एडिशन करना है, एडिशन करना है ये नंबर के साथ, बट ये सब बोलने के बाद हमें माइक्रो प्रोसेसर को ये भी बोलना पड़ेगा तेरा एडिशन होने के बाद तू जो भी रिजल्ट जनरेट करेगा उस रिजल्ट को स्टोर कर इस मेमोरी लोकेशन में। सो ऑल्सो वी हैव टू टेल माइक्रो प्रोसेसर द रिजल्ट हैज टू बी स्टोर्ड इन विच लोकेशन। ठीक है, सो दीज 3 थिंग्स हैज टू बी टोल्ड। और एक बार रिवाइज करते, कोई भी प्रोग्राम, देखो आप भी ALP प्रोग्राम करने वाले, बराबर? सो आप जब ALP प्रोग्राम करने वाले तो आपको 3 चीजें माइक्रो प्रोसेसर को बोलना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है?
कौन से नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो वो नंबर्स कौन से मेमोरी लोकेशन पे वो आपको बताना पड़ेगा। सो ये सब होने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट को स्टोर कहाँ पे करना है, स्टोर करने का मेमोरी लोकेशन बोलना पड़ेगा। बस ये 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे मैंने एग्जांपल और एडिशन करना है, ठीक है, डेटा आपको इधर मिल जाएगा और रिजल्ट आपको इधर स्टोर करना है। मतलब ये 3 चीजें मुझे बोलना पड़ेगा। अगर ये बोलते तो ही हम 8085 में कोडिंग या ELP कर सकते हैं। एड्रेसिंग मोड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलता है फ्रेंड्स? द मेथड बाय विच द एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा और एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। मतलब एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड, ठीक है, एक ऐसा मेथड जहां पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सोर्स का एड्रेस देते हैं और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए डेस्टिनेशन का एड्रेस देते हैं, तो उसी मेथड को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। वेरी सिंपल। देखो, माइक्रो प्रोसेसर से कुछ काम करवा के लेना है। माइक्रो प्रोसेसर से क्या करना है? कुछ काम करवा के लेना है। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, 1's कॉम्प्लीमेंट हो, 2's कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? ठीक है, ये सब ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। बट उससे काम करवा के लेने के लिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि डेटा किधर स्टोर्ड है, फिर उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि उसको रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये बोलने के लिए कुछ मेथड लगेगा, उसी मेथड को अपन बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। आई होप सो नाउ द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। एक बार रीड कर लो। अगर ये वाला डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट जा रहा है तो और एक डेफिनेशन है आपके लिए। द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर्स टू द वे इन विच ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है? ऑपरेंड जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं बोलूं एडिशन, सो एडिशन, अगर मैं बोलूं ऐड, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू से ऐड बी, एक इंस्ट्रक्शन है 8085 का, एक इंस्ट्रक्शन है ऐड बी। ऐड बी का एक्चुअल मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड समझो मेरे a के अंदर है डेटा 05h, ठीक है, मतलब a के अंदर है डेटा 05h एंड समझो b के अंदर है डेटा 04h। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? a के अंदर डेटा क्या है? 05 प्लस 04, इनका एडिशन होगा। इनका एडिशन होकर रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? अपने ए के अंदर ही स्टोर होगा। सो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर फिर स्टोर हो जाएगा 09H, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने। अब इस ऑपरेशन में आपको 3 चीजें याद रखना है, ठीक है। ये ऑपरेशन का नाम क्या था? सोचो, ऑपरेशन का नाम क्या था? एडिशन। ये कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। यहाँ पे ऑपरेंड्स कौन है? हु आर द ऑपरेंड्स? A एंड B। A एंड B आर द ऑपरेंड्स। चलो मुझे बताओ, मेरा सोर्स कौन है? सोर्स एड्रेस, सोर्स का एड्रेस क्या है? मुझे एडिशन जो नंबर का परफॉर्म करना है तो वो है A एंड वो है B। सो दीज आर द सोर्स, दीज आर द सोर्स। व्हाट इज डेस्टिनेशन? अगेन हमने A और A का एडिशन किया B के साथ और हमने उसको स्टोर किया A के साथ ही, ठीक है। मतलब हमने उसको स्टोर किया एक्यूमुलेटर के अंदर ही, तो अपना डेस्टिनेशन हो गया एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये आपको अभी शायद आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो। बाद में जब हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट अब इतना याद रखो, ऑपरेशन का नाम एडिशन, ऑपरेंड A और B, ठीक है। ऑपरेंड कौन था अपना? A और B। और ऑपरेटर कौन था? हु वाज द ऑपरेटर? प्लस। दिस प्लस इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटर एंड दिस इज योर ऑपरेशन, ठीक है। अगर समझ में आया तो ले लो, नहीं तो बाद में तो इंस्ट्रक्शन हमें डिस्कस करना ही है, ठीक है। द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर्स टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, ठीक है। हम लोग ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेंगे और पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ओके। चलो, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। 8085 में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अभी से लेके एक 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। 10 मिनट्स प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी फोकस्ड। आपके सारे एड्रेसिंग मोड हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। So let's start the first addressing mode, that is register addressing mode. So before starting register addressing mode, we must understand an example. Directly start मत करो, पहले example को समझो. Let's take example. Register addressing mode में basically होता क्या है? 2 चीज़ आपको समझना है, 3 चीज़ आपको समझना है. Operation to be performed, address of the source, address of the destination. बरोबर, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है. So let's take example. अभी हमने समझो ऑपरेशन बोला मूव ऑपरेशन. MOV का मतलब होता है मूव ऑपरेशन. मूव मतलब कॉपी और मूव द डेटा.
मूव ए कॉमा बी का मतलब होता है हम लोग ए एंड बी आर द रजिस्टर्स। बेसिकली एक चीज आप हमेशा याद रखो, अपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर देर आर सम रजिस्टर्स, एंड व्हाट आर दिस रजिस्टर्स? रजिस्टर्स आर बेसिकली यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज। रजिस्टर कौन कौन होता है? ए बी सी डी ई एच एंड एल। सो दीज आर द रजिस्टर्स इन 8085 एंड these registers are used to store some values, these registers are used to store some data। ठीक है, सो इसके अलावा और कोई रजिस्टर नहीं होता अपने पास 8085 में, ओनली दीज मेनी रजिस्टर्स आर देयर। दिस रजिस्टर्स हैज अ साइज ऑफ 8 बिट, मतलब हर एक रजिस्टर के अंदर 8 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अभी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है? अपना सोर्स भी रजिस्टर है और अपना डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, इसका बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है, ध्यान दो बस। मूव ए कॉमा बी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता है क्या? मूव ए कॉमा बी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता है क्या? आपका बी का जो भी डेटा है ना, बी के अंदर जो भी डेटा है वो मूव हो जाएगा ए के अंदर, बस इतना ही है। इतना ही है। और एक बार मूव ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है ना, बी के अंदर का जो भी डेटा होता है, समझो बी के अंदर 10 है तो 10 मूव हो जाएगा ए के अंदर। सो द डेटा ऑफ बी विल बी मूव्ड इनटू द रजिस्टर ए। सो योर ए एंड बी बोथ आर द रजिस्टर्स। सो मुझे बताओ यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन कौन है? हु इज द सोर्स? ऑफ कोर्स बी। एंड हु इज द डेस्टिनेशन? ऑफ कोर्स ए। मतलब सोर्स में से डेस्टिनेशन तक अपना रिजल्ट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों भी रजिस्टर्स है, आपको दिख रहा है ए बी, कैन यू सी? ए भी रजिस्टर है और बी भी रजिस्टर है। सो जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों भी रजिस्टर है, तो आंख बंद करके बोलने का रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर? बहुत सिंपल है। ठीक है, और एक बार, आपका जब सोर्स भी रजिस्टर है, आपका डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है, तो ऐसे मोड को या ऐसे एड्रेसिंग मोड को बोलने का रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? मूव का ऑपरेशन। सो बी का डेटा मूव हो जाएगा ए के अंदर। ठीक है, ओके। सो ऑपकोड, अभी ऑपकोड बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। इसका ऑपकोड होता है 78H। मूव का मतलब होता है कॉपी और मूव इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। रजिस्टर बी इज द सोर्स ऑफ द डेटा, ये जो होता है ना रजिस्टर बी, दैट इज द सोर्स। रजिस्टर ए इज द एक्यूमुलेटर एंड दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द रिजल्ट। ए को हमेशा बोलने का एक्यूमुलेटर, ए को हमेशा क्या बोलने का? एक्यूमुलेटर। व्हाट इज एक्यूमुलेटर? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। ठीक है, सो ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। सो दिस इज द डेस्टिनेशन। सो द डेटा इज मूविंग फ्रॉम द सोर्स टू destination and here both are registers। देखो A is also register and B is also register, so this kind of addressing mode is called as register addressing mode। let's take example, say A के अंदर है value 5, B के अंदर है 17। so after move A comma B, B के अंदर 17, A के अंदर था 5, तो क्या हो जाएगा? B का डेटा शिफ्ट हो जाएगा A के अंदर। सो A का डेटा हो जाएगा ओवरराइट, मतलब ओवरराइट नहीं बोल सकते, इरेज हो जाएगा और ये वाला डेटा रिप्लेस कर देगा। सो आफ्टर मूव A comma B, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17H। सो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17H, बिकॉज ये 05 तो चला जाएगा और बी का वैल्यू इसके अंदर हो जाएगा। वही तो अपना इंस्ट्रक्शन बोलता है, मूव ए कॉमा बी। ओके, चलो अब इसके ऊपर का थ्योरी पढ़ लेते। इन दिस मोड द ऑपरेंड इज जनरल पर्पज रजिस्टर। ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड मतलब आपका सोर्स और आपका डेस्टिनेशन दोनों भी क्या है? रजिस्टर्स है। इसके लिए अपन इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ऐसे बोलते हैं। अभी रजिस्टर कौन कौन हो सकता है? ए बी सी डी एच एंड एल, एंड इनका साइज क्या होता है? 8 बिट का साइज होता है। ठीक है, इनके अंदर 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। अ इंस्ट्रक्शन बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, ये एड्रेसिंग मोड जो होता है ना वो बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों? दीज इंस्ट्रक्शंस ओनली यूज 1 बाइट ऑफ प्रोग्रामिंग मेमोरी स्पेस। इनको सिर्फ 1 बाइट लगता है। ठीक है, सो इनको सिर्फ कितना लगता है? 1 बाइट का स्टोरेज स्पेस लगता है। जब भी रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर को एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी का सिर्फ 1 बाइट लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 1 बाइट। इट विल नॉट टेक मोर देन दैट। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इसको कहीं तो आप नोट करके रख देना, लाइक सिर्फ आपको डेटा एग्जीक्यूट करना है या सिर्फ इंस्ट्रक्शन, डेटा बोलने से सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा। जैसे मूव ए कॉमा बी, दिस इज ओनली द इंस्ट्रक्शन, सो इट विल टेक 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ठीक है, इफ यू हैव इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, इंस्ट्रक्शन के साथ कोई डेटा रहेगा तो इट विल टेक 2 बाइट। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपके पास रहेगा इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी लोकेशन, कभी आपको अगर ऐसे लिखने मिलेगा इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी लोकेशन, इट विल हैव अ मेमोरी यूजेज ऑफ 3 बाइट। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना।
ऑलवेज रिमेंबर. नाउ व्हाट इज द केस हियर, व्हाट इज द केस हियर, ओनली इंस्ट्रक्शन. ठीक है, यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको, कोई नंबर कोई वैल्यू दिख रहा है नहीं, कोई मेमोरी एड्रेस दिख रहा है C000H C001H, कोई मेमोरी एड्रेस दिख रहा है नहीं. सो ओनली हियर देयर इज इंस्ट्रक्शन. ये प्योर इंस्ट्रक्शन है और प्योर इंस्ट्रक्शन को रन होने के लिए कितना मेमोरी स्पेस लगेगा, 1 बाइट. अगर इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेटा रहेगा तो इट विल टेक 2 बाइट. इंस्ट्रक्शन के साथ मेमोरी लोकेशन रहेगा तो इट विल टेक 3 बाइट. ठीक है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए. चलो, these instruction only use 1 byte of program memory space. They are also executed quickly because they do not have to fetch operands from memory. Yes, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो थे ना माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत फास्ट रन हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे फेच करने का कोई सवाल ही नहीं आता. फेच मतलब अपने मेमोरी लोकेशन से कोई डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अभी सब कुछ इधर ही है, अपना सोर्स भी इधर है और अपने डेस्टिनेशन भी इधर है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सब कुछ काम हो रहा है. सो नो नीड टू गो टू द मेमोरी लोकेशन टू ब्रिंग द डेटा. सो हियर दिस इंस्ट्रक्शन रन्स वेरी क्विकली. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अ वेरी एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, चलो अभी आप इसको रिवाइज कर लो, लिख लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. चलो, नाउ वी गो टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन. द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सेकंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सो व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देखते हैं. चलो, पहले एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आएगा. लेट्स टेक एग्जाम्पल LDA C000H. सबसे पहले इसका मेमोरी कंजम्पशन देखते हैं. इसका मेमोरी कंजम्पशन मैंने आपको क्या बोला, जब इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी रहेगा तो कितना बाइट लगेगा. अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, जब आपके पास इंस्ट्रक्शन रहेगा और आपके पास मेमोरी लोकेशन रहेगा, और आपके पास क्या रहेगा, मेमोरी लोकेशन रहेगा, तो इट विल टेक 3 बाइट. सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विल टेक 3 बाइट. आपको यहाँ पे दिख के भी दिया है. सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक हाउ मेनी बाइट, 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी आपको समझ में आ रहा है, मेमोरी लोकेशन आया तो हमेशा याद रखने का 3 बाइट. ओके, चलो, सो लेट्स डिस्कस दिस. LDA का बेसिकली मतलब होता है, LD का मतलब होता है लोड, A का मतलब होता है एक्यूमुलेटर. ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर A आपको दिखाई देता है तो दैट इज एक्यूमुलेटर. सो इसका मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन C000H. इसका मतलब ये होता है, ये मेमोरी लोकेशन पे आपको जाना है, ये मेमोरी लोकेशन पे जाने के बाद आपको एक डेटा मिलेगा, वो डेटा को लेके आना है एक्यूमुलेटर के अंदर. ठीक है, चलो जाते कहाँ पे जाना है, ये मेमोरी लोकेशन पे जाना है. चलो, ये अपना मेमोरी ब्लॉक है. ठीक है, सो C000H. सो C000H पे आपको कौन मिला, C8H. सो ये क्या हो गया आपका डेटा. अब ये डेटा कहाँ पे जाएगा, ये डेटा जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, सी आफ्टर LDA C000H, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो जाएगा अपडेट. एक्यूमुलेटर के अंदर इससे पहले जो भी वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा अपडेट. सो आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू बन जाएगा C8H. कैसे क्या C8H बन गया, बिकॉज हमने तो लोड किया ना, यहाँ का वैल्यू एक्यूमुलेटर के अंदर हमने लोड कर दिया. ठीक है, सो समझो, लेट्स टेक एग्जांपल. उन्होंने बोला एक्यूमुलेटर के अंदर पहले कौन था भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर पहले कौन था, 05. फिर मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर किया. ठीक है, पहले सिनेरियो समझो, पहले एक्यूमुलेटर के अंदर था 05H, फिर मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर किया. ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर करने का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर कंटेंट विद द वैल्यू ऑफ C000H. इसका मतलब होता है C000H के पास जाना है. चलो, C000H के पास जाना है, उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको वहां से उठा के कहां पे लाना है, एक्यूमुलेटर के अंदर लाना है. चलो, सो यहाँ पे C8H है डेटा. सो आफ्टर LDA, आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू अपडेट हो जाएगा इनटू C8H. इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों बोलते हैं. अच्छा, इधर रजिस्टर क्यों नहीं दिख रहा आपको, नाम रजिस्टर क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज आपका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है बताओ. ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स क्या है, सोर्स मेमोरी लोकेशन. आपका सोर्स क्या, मेमोरी लोकेशन. आपका डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर. सो आपका सोर्स है मेमोरी लोकेशन, आपका डेस्टिनेशन है एक्यूमुलेटर, बरोबर. सो यहाँ पे रजिस्टर्स है क्या कहीं, हाँ ए है, बट आपका जहाँ से आपका सोर्स रजिस्टर है क्या, नहीं. इसके लिए यहाँ पे आपको उसके नाम पे कभी रजिस्टर देखने नहीं मिलेगा. सो वी कॉल इट एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों बोलते हैं, इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, यहाँ से जो भी डेटा रहेगा उसको डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो. सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ओके, चलो, सो LDA इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम C000H. लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन C000H is the source of the data, and destination
रजिस्टर ए मतलब एक्यूमुलेटर इज द डेस्टिनेशन, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, थ्योरी पढ़ लेते। इन दिस मोड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ये हम इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग के मोड क्यों बोलते हैं, बिकॉज मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है। ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो आप 8085 के अंदर रन करने वाले हो, बरोबर। सो ये इंस्ट्रक्शन में ही आपका मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और मेमोरी एड्रेस के अंदर क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ईदर मेमोरी एड्रेस ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली, इसके लिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपका मेमोरी एड्रेस, आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन, बाबा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको कहां पे दिया हुआ है, आपके इंस्ट्रक्शन में। सो इस एड्रेसिंग मोड को हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज ऑफ 3 बाइट। अब ये कैसे क्या मैं आपको पहले बता चुका हूं, 3 बाइट। जब इंस्ट्रक्शन और मेमोरी लोकेशन रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर विल रिक्वायर 3 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस टू रन दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ विल गो टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चलो अब ये पढ़ लेते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कोई भी एड्रेसिंग मोड पढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये लेक्चर हैवी जा सकता है, इसके लिए एक चीज़ याद रखो, कोई भी एड्रेसिंग मोड पढ़ने से पहले 3 पॉइंट्स प्रोग्रामर को क्या सोचना है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको पहले क्लियर रखो, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी इनडायरेक्ट क्यों बोला है इधर, इनडायरेक्ट क्यों बोला है, बिकॉज लेट्स टेक एग्जांपल। ये इंस्ट्रक्शन में हमने क्या बोला है, मूव ए कॉमा एम। मूव ए कॉमा एम का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, मूव ए कॉमा एम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एम का डेटा, एम के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। अभी एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है आपका रजिस्टर पेयर, मतलब मेमोरी। एम का मतलब बेसिकली होता है मेमोरी, एम का मतलब होता है मेमोरी मतलब डायरेक्टली आपको मेमोरी एड्रेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस मिलेगा बट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। और एक बार एम का मतलब होता है मेमोरी, यहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। बाय इनडायरेक्टली कैसे मिलेगा, बाय रजिस्टर पेयर। आपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर ना 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, HL, BC एंड DE, ऐसे 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, ठीक है। ये 3 रजिस्टर पेयर में से एक रजिस्टर पेयर आपको एड्रेस देगा, क्या देगा, आपको एड्रेस देगा। अच्छा, लास्ट इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है। लास्ट इंस्ट्रक्शन में अगर आपने अच्छे से नोटिस किया रहेगा तो इंस्ट्रक्शन में ही आपको एड्रेस दिया हुआ है, बट इधर आपको इंस्ट्रक्शन में किधर एड्रेस दिख रहा है क्या, बोलो मुझे, इंस्ट्रक्शन में कहीं एड्रेस दिख रहा है क्या, नहीं। आपको एड्रेस दिया हुआ है, बट इंस्ट्रक्शन में नहीं है। आपको एड्रेस दिया हुआ है बट इंस्ट्रक्शन में नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी आपको एड्रेस दिया हुआ है मतलब क्या, आपके एम के पास एड्रेस है, एम मतलब क्या, इन तीनों में से एक के पास एड्रेस है। दिखाता मैं आपको, टेंशन मत लो। देखो HL के पास, HL के अंदर देखो, H के अंदर C0, L के अंदर 01, मतलब आपको क्या मिल गया, C001 एड्रेस मिल गया। अब एड्रेस के अंदर डेटा मिल गया, और इसी डेटा को हमें कहां पे लेके जाना है, इसी डेटा को हमें लेके जाना है ए के अंदर। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको एड्रेस मिला डायरेक्टली, इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस मिला क्या, नहीं। आपको एड्रेस घुमा के मिला, आपको एड्रेस इनडायरेक्टली मिला, मतलब आपको एड्रेस एम मतलब कोई एक रजिस्टर पेयर के अंदर मिला। अभी कौन सा रजिस्टर पेयर के अंदर मिला, HL। अभी जरूरी नहीं कि हमेशा HL रहेगा, HL की जगह पे BC भी हो सकता है, HL की जगह पे DE भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये रजिस्टर पेयर आपको एड्रेस देंगे, और वो एड्रेस पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा डेटा, और ये डेटा को लेके आना है एग्जैक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर। काम तो वही हो रहा है, लास्ट इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन सेम है, बट लास्ट इंस्ट्रक्शन में आपका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही था, और इसमें आपका एड्रेस इनडायरेक्टली आपको कौन दे रहा है, इनडायरेक्टली आपको दे रहा है रजिस्टर पेयर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते। मूव इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है M, हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर पेयर HL या BC या DE इज द सोर्स ऑफ द डेटा। एंड डेस्टिनेशन कौन है, सोर्स तो आपको पता चल गया, HL पेयर। डेस्टिनेशन कौन है, रजिस्टर A कौन है, अपना डेस्टिनेशन है, बरोबर। सो समझो, लेट्स टेक एग्जांपल। पहले एग्जीक्यूशन से पहले एक्यूमुलेटर के अंदर था 05H। एग्जीक्यूशन के बाद जब मैंने इस इंस्ट्रक्शन को फायर किया, मूव A, M, चलो M को जाते, M के अंदर क्या है, HL, M मतलब रजिस्टर पेयर, M मतलब HL के अंदर आपको क्या मिला, एड्रेस मिला। चलो उस एड्रेस पे जाते, उस एड्रेस पे आपको मिला डेटा। अब ये डेटा आपको एग्जैक्टली लेके जाना है एक्यूमुलेटर के अंदर। सो आफ्टर
firing this instruction, your accumulator value will be 71H. 71H आया कहाँ से? यहाँ से आपका M का वैल्यू, मतलब आपका डेटा, M मतलब HL के अंदर मेमोरी एड्रेस एंड मेमोरी एड्रेस के अंदर डेटा, ठीक है। नाउ दिस 71H विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्यूमुलेटर। सो पहले एक्यूमुलेटर के अंदर कौन था? 05। आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 71H। समझा? बट आपको डायरेक्टली नहीं मिला। मुद्दे को समझो। डायरेक्टली आपको मिला क्या? लास्ट इंस्ट्रक्शन में जैसे डायरेक्टली आपको मिला था, यहाँ पे डायरेक्टली मिला नहीं, आपको डेटा मिला बट आपको इनडायरेक्टली मिला। सो दिस एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे हो। एक्यूमुलेटर भी खुद एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर। एंड आपका HL भी रजिस्टर है, ठीक है। HL जो था ना, HL, दीज आर ऑल्सो रजिस्टर्स एंड A इज ऑल्सो रजिस्टर्स, बराबर। सो यहाँ पे पूरा रजिस्टर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे रजिस्टर्स भी इन्वॉल्व है, मतलब आपका सोर्स में भी रजिस्टर है, आपको दिख रहा है सोर्स में भी रजिस्टर है, आपका डेस्टिनेशन में भी रजिस्टर है। इसको हम इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में हमने रजिस्टर क्यों नहीं बोला? इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में हमने रजिस्टर इसके लिए नहीं बोला बिकॉज आपका सोर्स मेमोरी एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस, और आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर था, दोनों भी रजिस्टर नहीं था, इसके लिए वहां पे आपने रजिस्टर ये वर्ड यूज नहीं किया। और इधर आपने रजिस्टर ये वर्ड क्यों यूज किया इंस्ट्रक्शन में, एड्रेसिंग मोड में? बिकॉज आपका सोर्स भी रजिस्टर है और आपका डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू। इन दिस मोड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड गिवन इन द रजिस्टर पेयर। आपको आपका मेमोरी एड्रेस कहाँ पे मिलेगा? रजिस्टर पेयर में मिलेगा। Either memory address of source or destination is given in register pair. अभी register pair there can be HL, BC, DE, ठीक है, और कोई फोर्थ रजिस्टर पेयर नहीं होता। इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आर 1 बाइट। अच्छा, 1 बाइट क्यों? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए क्या लगेगा? 1 बाइट। बिकॉज सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन है। अभी कोई बोलेगा कि M मतलब मेमोरी, आपने तो सर बोला इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी वो 3 बाइट का होता है। अरे वैसा नहीं होता। आपको मेमोरी एड्रेस दिख रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ M लिखा है, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एड्रेस दिख रहा है क्या? नहीं। तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए लगेगा 1 बाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंफ्यूजन होता है, वो बोलते सर मेमोरी है ना, आपने बोला इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी 3 बाइट है, फिर आप 1 बाइट कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई, अगर ये ऐसा होता मूव A,C000H, अभी ये मेमोरी एड्रेस है, अभी इसको रन करने के लिए 3 बाइट लगेगा, बट इधर आपको मेमोरी एड्रेस दिख रहा है क्या? M दिख रहा है, बट उसके अंदर है मेमोरी एड्रेस, बराबर। तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन की बात करें, सो ये इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए लगेगा ओनली 1 बाइट, ठीक है। चलो, आई होप सो वी हैव कंप्लीटेड द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नाम से ही पता चलता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहले एग्जांपल, आई होप सो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? MVI A,23H। MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन में ये I आ गया, तो समझ जाने का इट इज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अभी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का अर्थ क्या होता है? मूव इमीडिएट। 23H, अभी 23H क्या है? यहाँ पे डेटा है। 23H क्या है? डेटा। अब ये H मतलब दिस इज अ हेक्साडेसिमल डेटा। आपको अभी बेसिक में बताता ना, 23H, 20H, 10H, बराबर। उसके बाद 11H, ये सब क्या है? हेक्स डेटा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल डेटा, ठीक है। अब ये डेटा को आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, दिस 23H विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। बहुत सिंपल है। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये डेटा आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे सोर्स क्या और डेस्टिनेशन क्या? सोर्स, दिस डेटा इज द सोर्स, accumulator is the destination. So MVI is the operation to be performed. Move immediate, move करना है हमें। Immediate data 23H is itself the source of the data. Register A, accumulator is the destination. बराबर। इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में हमें एग्जैक्टली डेटा मेमोरी में मिल रहा था, बट अभी इंस्ट्रक्शन में ही डेटा मिल गया, इसी को हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दिस 23H विल बी मूव टू द एक्यूमुलेटर। समझो, एक्यूमुलेटर के अंदर पहले था 05H, बट इस इंस्ट्रक्शन को फायर करने के बाद आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट अपडेट हो जाएगा एंड आपका एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा? 23H आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन, बराबर। हाँ, मैंने आपको एक चीज बोला था, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, इसको रन करने के लिए कितना मेमोरी साइज लगेगा? वेरी गुड, 2 बाइट। इसको रन करने कितना लगेगा? 2 बाइट। इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, इसको रन करने के लिए 2 बाइट। ओनली इंस्ट्रक्शन 1 बाइट।
इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी एड्रेस 3 बाइट। यस, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये सबसे सिंपल था। ठीक है, चलो, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड गिवन विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। सो यहाँ पे ऑपरेंड जो है मतलब अपना डेटा कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन में ही है। आपको कोई रजिस्टर पेयर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई रजिस्टर में जाने की जरूरत नहीं, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके इंस्ट्रक्शन, आप जो माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दोगे उसी इंस्ट्रक्शन में ही आपका डेटा छुपा हुआ है, बरोबर। एंड इसी डेटा को हम लोग कहाँ पे मूव करने वाले, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करने वाले, राइट। हाँ, इधर 8 बिट डेटा और 16 बिट डेटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। अब ये कितना बिट का डेटा है, ठीक है, दिस इज अ 8 बिट डेटा। ये कितना बिट का डेटा है, 8 बिट। 2, ठीक है, बेसिकली 2 ये होता है आपका 4 बिट और 3 ये होता है आपका 4 बिट। सो 4 + 4 ये होता है आपका 8 बिट का डेटा। ठीक है, ये कितना होता है, 8 बिट का डेटा। इसका ऑपकोड होता है 3EH। ठीक है, ऑपकोड का टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल्स में आपको एक शीट दिया जाएगा जिसके अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड रहेगा उसमें। ठीक है, तो ऑपकोड याद रखने की जरूरत नहीं है बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी। सो डेटा 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आर 2 बाइट और 3 बाइट। अच्छा, 2 बाइट 3 बाइट कब होगा, हाँ, जब यहाँ पे 8 बिट का इंस्ट्रक्शन रहेगा। 8 बिट, अगर 8 बिट का इंस्ट्रक्शन रहा तो इट विल कंज्यूम 2 बाइट। एंड समझो यहाँ पे 16 बिट का इंस्ट्रक्शन रहा, अगर यहाँ पे 16 बिट का इंस्ट्रक्शन रहेगा तो इट विल कंज्यूम 3 बाइट। ओके, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन MVI A,23H। सो ये इंस्ट्रक्शन फायर करने से ये डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा एंड एक्यूमुलेटर का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका सोर्स है डेटा 23H और आपका डेस्टिनेशन है एक्यूमुलेटर, और इसको हमने परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज किया है मूव इमीडिएट। सो इस एड्रेसिंग मोड का नाम पड़ता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएटली आपका एड्रेस मूव हो जाएगा, बरोबर। And we come to the last addressing mode, that is implicit or implied addressing mode. Now what is implicit या implied addressing mode? Implicit का मतलब होता है लाइक आपका इंस्ट्रक्शन जो रहेगा ना उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आपका इंस्ट्रक्शन, आपका सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, अपना इंस्ट्रक्शन के साथ एक तो रजिस्टर था, अपने इंस्ट्रक्शन के साथ एक तो मेमोरी एड्रेस था, ठीक है, अपने इंस्ट्रक्शन के साथ एक तो डायरेक्ट डेटा था अभी लास्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। बट अब भी वैसा सीन नहीं है, अब भी सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, जैसे कि ये CMA। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखो इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड उसी को बोलते हैं जहाँ पे आपका सोर्स भी वही रहेगा और डेस्टिनेशन भी वही रहेगा। जहाँ पे क्या रहेगा, सोर्स भी वही रहेगा और डेस्टिनेशन भी वही रहेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन वही रहेगा। तो ऐसे एड्रेसिंग मोड को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। See, in this mode, address of source of data as well as address of destination of result is fixed and there is no need to give any operand along with the instruction. यहाँ पे कोई अलग से ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। CMA का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल समझते, लेट टेक एन एग्जाम्पल। अभी A के अंदर है 05H, अब ये इंस्ट्रक्शन फायर करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट के ऊपर किया जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो ये 05 को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू बाइनरी। सो 0 का मतलब होता है 4 बिट होता है ना, 0 4 बिट 5 4 बिट। सो 4 बिट को कन्वर्ट करो 0 0 0 0 एंड 5 को कैसे कन्वर्ट करने का, मैंने आपको बोला था 1 2 4 8। सो 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 + 1, बाकी जगह पे 0। सो 0 1 0 1, ये आपको दिख रहा है 0 1 0 1। सो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा रहेगा, 0 का करने का 1, 1 का करने का 0। चलो कर देते, 0 का कर दो 1 और 1 का कर दो 0, उल्टा। अब इसको फिर से कन्वर्ट करो इनटू हेक्साडेसिमल, मतलब 1 1 1 1 डाल दो, 1 1 1 1, इन सबको ऊपर ऐड कर दो। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते थे, याद है? 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते थे, F, याद है ना? अरे हम लोग 10 को लिखते A, 11 को लिखते B, 12 को लिखते C, 13 को लिखते D, 14 को लिखते E एंड 15 को लिखते F, राइट। सो ये 15 है, 15 1 1 1 1 करो ना सबको ऐड, क्या मिलेगा आपको 15। तो 15 को क्या लिखेंगे, F, एंड उसके बाद आपको क्या मिला 1 0 1 0। अच्छा ये कहाँ से मिला, ये हमने 05 है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया और हमें ये मिला 1 0 1 0। चलो 1 0 1 0 डालो यहाँ पे, 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐड करो, जहाँ जहाँ पे 1 है
जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड करना है, 0 को ऐड करना नहीं है। सो 8 + 2 10। अभी 10 है, 10 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं, ए। सो ये क्या आ गया? ए। सो बेसिकली यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला? FAH। तो अपने एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? FAH। सो 05 का 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है? FAH। ठीक है, तो अपना सोर्स भी एक्यूमुलेटर था, और देखो सोर्स भी एक्यूमुलेटर था, और अपना डेस्टिनेशन देखो वो भी एक्यूमुलेटर है। सो जब आपका सोर्स भी एक्यूमुलेटर है और आपका डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर है और उसी के अंदर पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड या ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर। क्लियर? जिसको नहीं समझाना फिर से एक बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो और फिर से सुन लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक एग्जाम्पल इज देयर, कंटेंट इज देयर, थियरी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। इतना याद रखो, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड किसको बोलेंगे? जहाँ पे सोर्स भी वही रहेगा और अपना डेस्टिनेशन भी वही रहेगा। ठीक है, चलो, so we come to the end of the today's topic. So we have completed the addressing modes of 8085, a very very important topic. I hope so everybody made your own notes अगर तुम्हारा खुद का रहेगा तो आपको बहुत easy जाएगा, बहुत simple जाएगा। So यहाँ पे जो भी दिया है अपना नोट्स अच्छे से मेंटेन करके रखो। I am going to come up with all the instruction set, आपके लिए मैं सब इंस्ट्रक्शन सेट अभी सून अपलोड करने वाला हूँ, बट बेसिक्स को क्लियर रखना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे क्या डाउट पूछना या कमेंट में डाल देना, बट मेरे से डाउट्स क्लियर कर लेना बस। ठीक है, बट आने से पहले और एक बार सुन लेना। ठीक है, 2-3 बार इस वीडियो को सुन लो, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपका ALP उतना ही स्ट्रांग रहेगा जितना आपका एड्रेसिंग मोड क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।